is better. Not irritating. मैंने बैठना कैसा चाहिए वो देख ले थोड़ा सा. तू दिख रहा है स्क्रीन पे. हो गया ना. Just mute yourself when you say something. Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you in RSSDI Diabetes Bites. And today we are here with all of you with the sixth episode of the Diabetes Bites. Diabetes Bites में आप सबका स्वागत है. हम Diabetes Bites जो हमने एक महीने पहले शुरू किया था, now we are entering into the sixth episode. And we are very thankful to all the viewers who have joined us and who have encouraged us and given us a lot of feedback. हमें बहुत सारे feedback मिल रहे हैं, सुझाव मिल रहे हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट सारे के सारे सुझावों को हम लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. और उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डायबिटीज के क्षेत्र में तीन बहुत ही प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने डायबिटीज में इतना काम किया है और डायबिटीज में पिछले 25-30 सालों से निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं और डायबिटीज के बारे में काम कर रहे हैं. एंड वी आर वेरी लकी कि टुडे जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डायबिटीज मॉनिटरिंग. की मॉनिटरिंग कैसे करें ब्लड ग्लूकोज की, उसके क्या टूल्स हैं, कैसे करना चाहिए. आप सबके क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम है. यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द chat window and we will take up the questions with the panelists as well. And before that, I would like to introduce all the esteemed panelists and our moderator today. I will request our admin team to post the slides. First of all, I would like to welcome Dr. Sunil Gupta. Dr. Sunil Gupta is a very senior consultant and diabetologist based in Nagpur. And Dr. Sunil Gupta has almost all the awards and the degrees which one could have. And he is also the national treasurer of the RSSDI. And Dr. Sunil Gupta, we take immense pride and pleasure in inviting you at this forum because you have been associated with diabetes education for a very long period. With that, we have Dr. Rakesh Shahai sir with us. And Dr. Rakesh Shahai is a diabetologist based in Hyderabad. Next slide, please. And Dr. Rakesh Shah is also an executive council member of RSSDI, and he is former professor and head department of endocrinology and at the Osmania Medical College and Hospital. And sir has many awards and accolades to his credit and more than 130 publications in various national and international journals. Welcome, Dr. Rakesh Shah, sir. And with that, I would like to welcome Dr. Pratap Jethwani. Dr. Pratap Jethwani is a senior diabetologist and consultant based in Rajkot, Gujarat. And he is a fellow of RSSDI and fellow of Diabetes India, also an EC member of RSSDI. He is also secretary of RSSDI Gujarat chapter. With this, sir, I welcome all the three legends on RSSDI Diabetes Bites, and I will request Dr. Pratap Jethwani to please take over the proceedings from here. Thank you, Dr. Amit Gupta. First of all, thank you for introducing and for inviting us to be live on RSSDI Facebook page. And today we will be discussing about one of the most important aspects of diabetes management, that is monitoring of blood glucose. I hereby welcome our treasurer, Dr. Sunil Gupta sir from the city of Nagpur, and our executive committee member, Dr. Rakesh Shahai from the city of Hyderabad. And we will be carrying forward with various questions which are there in the patients' minds regarding monitoring of blood glucose. There are many confusions, there are many questions related to this aspect because this is an integral part of diabetes management, be it type 1 diabetes, type 2 diabetes, or gestational diabetes. We all know that diabetes is a disorder of chronic hyperglycemia resulting in a variety of complications. And to avoid complications, one has to control blood sugar effectively. And when one has to control blood sugar effectively, it is very much required to understand that what are your current blood sugar values. If you don't know your current blood sugar values, you will not be able to do, be it in diet or in physical activity or your drugs or insulin, to adjust that so that you achieve the target values and you achieve good glycemic control so that you avoid complications. And for that purpose, blood glucose monitoring is must. So blood glucose monitoring, we all know, we can go to laboratory and we can get our blood collected, and that we can monitor blood sugar in that way. That we can do it either in the fasting state
early morning before taking any food, or 2 hours after taking a meal, breakfast, lunch, or dinner. But if you have to monitor your blood sugar frequently, 4, 5, or 6 times a day, which is required in many patients, particularly who are on insulin, then it is difficult to go to laboratory 4, 5, or 6 times a day. Sometimes the lab will be closed, or you will not be able to have access to lab in certain remote places, or at emergency points when you want to test your blood sugar. It may not be possible for you to go to a laboratory. So at that time, home blood glucose monitoring is very much important. And today we will be discussing much more about this home blood glucose monitoring or self-monitoring of blood glucose. So first, I will start with first question to Dr. Rakesh Sahai, that in medical literature and healthcare teams, they generally say that SMBG, that is self-monitoring of blood glucose. So what is this SMBG and how one can monitor blood sugar at home? Yeah, thank you, Dr. Jetwani. So what I would like to highlight here is that diabetes, as he said, is a disease where blood glucose levels are going up, and because the blood glucose levels are high over a period of time, they cause a lot of complications: the heart disease, the eye disease, the kidney disease. All these are because of the blood glucose being high. Apart from that, there are other factors also which are coming in, but the important thing is the blood glucose. So unless we measure the blood glucose, we will not be able to know how effectively we are treating diabetes, how good we are, how safe we are from these complications. So to know all this, we need to have the blood glucose measures. And earlier days, what you used to do is that you used to take the blood from the vein. I mean, as you take out from your elbow, the vein, from the vein, the blood is drawn, and then it is sent to the lab. In the lab, it is separated out. The plasma is separated out. In the plasma, the glucose levels are measured. So that's called the plasma glucose value. So for all practical purposes, for all standard this thing, we say the definition, we say plasma glucose value, fasting plasma glucose value, more than 126, we say that person has got diabetes. Between 110 to 126, we say that he has got impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose. So that's how we classify people with diabetes. Now, when you're coming to managing patients, it's very difficult. I mean, the more number of blood glucose we have, the better we can manage a patient with diabetes. So a person can himself manage his diabetes by knowing about blood glucose levels, how his blood glucose levels are response to different meals, different types of food, different types of activities. And this can be done by, today we have the simplified blood glucose meters available. Earlier we used to have 20 years back when the meters, or 30 years back when the meters came into existence, they used to be very big and they used to take a lot of time. You had to draw the blood, put it on that and wash it and then put it again into that. So a lot of cumbersome processes were there. There was more chances of errors. Now today we have very good meters which are doing which are helping us in monitoring the blood glucose level. So this SMBG means self-monitoring of blood glucose. That is a point of care monitoring, or what we say is that at the place where you are, you can know your blood glucose levels, and that is what is called self-monitoring of blood glucose. So this is something which we have to all start using, and it has become very affordable now. It is in the reach of even every common man can use this, and because the meters are much cheaper than what they used to be. Now within 500-600 rupees you can get a meter, and the strips which used to be 30-40 rupees earlier, now you can get it very reasonable strips at 15-20 rupees. You can get a strip. So it is much more economical than going to the lab and getting a test done. Okay, so I think we will speak a bit in Hindi also, so that our audience, our diabetes patients can also understand a bit rather than doing everything in English. So yes. as जैसे डॉक्टर राकेश साई जी ने बताया अभी आपको कि ग्लूकोमीटर्स अभी बहुत इजीली अवेलेबल है, आपके नजदीक के केमिस्ट शॉप में आपको मिल सकते हैं. ओनली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ग्लूकोमीटर खरीदते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है. उसके लिए मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता जी से अभी पूछूंगा कि क्या ये सब ग्लूकोमीटर्स रिलायबल है या ग्लूकोमीटर खरीदते वक्त हर पेशेंट को कोई चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. सबसे पहले तो मैं RSSDI और टीम जो हमारी यह मैनेज कर रही है, स्पेशल थैंक्स टू अमित एंड पूर्वी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि एक बड़ा अच्छा पब्लिक अवेयरनेस हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है RSSDI बैनर पर, और इससे काफ़ी जनता को इससे फ़ायदा होगा, स्पेशली पेरिफेरी में.
जब हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं, मैं ग्लूकोमीटर पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पे बाद में आता हूं प्रताप जी, थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जब हमारे मधुमेहियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सबसे पहले ये है कि मॉनिटरिंग आपकी, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स माने जाते हैं। मैंने आपको एक टेबल दिया, उस टेबल के 4 पिलर होता है, पहला डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा गोलियां और चौथा इंसुलिन। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जो टेबल है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं डाइट, एक्सरसाइज, गोलियां, इंसुलिन और चौथा मॉनिटरिंग, तो ये एक बहुत बड़ा मॉनिटरिंग यानी एक बहुत बड़ा पिलर है मधुमेह की मैनेजमेंट का। और इसका यह टेबल तभी कंप्लीट होगा जब इसमें ऊपर टेबल टॉप होगा, अदरवाइज 4 पिलर के बाद भी टेबल इज इनकम्प्लीट। और टेबल का जो टॉप है दैट इज एजुकेशन। तो आज जो RSSDI ने जो इनिशिएटिव लिया है वह एजुकेशन का लिया है। तो हमारा टेबल कंप्लीट हुआ है, उस पर हम एक एक पिलर पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से हमने डाइट पे बात करी होगी, एक्सरसाइज पे बात करी होगी, आज हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट, और हम लोग एक चीज ध्यान में रखें हर मधुमेही को कि यदि आपको मधुमेह है तो घर में एक ग्लूकोमीटर होना अति आवश्यक है। आपकी शुगर कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, रात को डॉक्टर साहब मेरे तो बगल में डॉक्टर साहब है, मेरे तो पड़ोस में ग्लूकोमीटर है, मेरे तो घर के सामने में लैब है, तो मैं घर में मशीन क्यों रखूं, यह गलत एटीट्यूड है। यदि आपको रात को 11 या 12 बजे एकदम से कोई घबराहट होती है तो आपको यह मालूम होना जरूरी है कि आपका शुगर कम होने के कारण घबराहट हो रही है, या ज्यादा होने के कारण घबराहट हो रही है, या शुगर एकदम अच्छा कंट्रोल है, किसी कोई तीसरे कारण के कारण घबराहट हो रही है। तो इसीलिए घर में ग्लूकोमीटर होना अति आवश्यक है, ये पहली बात। दूसरा, जैसा कि बताया, हम लोग हमेशा बात करते हैं एम्पावरमेंट की, कि मधुमेही को मधुमेह के बारे में नॉलेज होना और उसको इस तरह से हम लोग इक्विप करना चाहते हैं कि वो अपना ख्याल खुद रख सके डॉक्टर की निगरानी में। That is called as empowerment. So empowering people with knowledge is the basic principle of any organization like RSSDI, and that is what we are trying to do it from this platform. So we are trying to empower you with the knowledge. उसमें सबसे बड़ा डाइट, एक्सरसाइज, गोलियां, ये एक जो हम बोलते हैं ना ओनरशिप का, एक सेंस ऑफ ओनरशिप इज ए बिग थिंग। तो ये डॉक्टर सुनील गुप्ता का डायबिटीज है, या राकेश सहाय का डायबिटीज है, या प्रताप जेठवानी का डायबिटीज नहीं, या आपका डायबिटीज है, आपको उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और जब हम ओनरशिप लेते हैं तो हमको इक्विप होना पड़ेगा उन अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से जिससे आप ओनरशिप ले सकते हैं। और उसमें ग्लूकोमीटर एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप अपने आप को इक्विप करते हैं एम्पावर होने के लिए। अब यह ग्लूकोमीटर की ऑलरेडी एडवांटेजेस हमको बता दिए कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कैसा होता है, परंतु जब भी आप कोई ग्लूकोमीटर लेने जाते हैं तो कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने वह उसमें यह देखें कि सिर्फ सस्ता है इसलिए अच्छा नहीं है। आप उसको उसमें कई बार कंट्रोल सॉल्यूशंस आते हैं, उससे आप क्रॉस चेक करके देखिए। जब भी आप उसकी स्ट्रिप्स खरीदने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लोगों में अक्सर ये गलत धारणाएं होती है कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग ज्यादा आती है और वीनस ब्लड जैसा प्लाज्मा ब्लड राकेश जी ने बताया उसका रीडिंग ज्यादा कम आता है। अब आप जब यह जो ब्लड होता है ये कैपिलरी ब्लड होता है, यानी यहाँ पर आप जब प्रिक करते हैं तो आपका ब्लड हार्ट से आने के बाद में कैपिलरी में आता है, उसके बाद वेन में जाता है, जहां से आपका यहाँ से जो सैंपल लिया जाता है वेन से, वो प्लाज्मा सैंपल, वहां से वीनस सैंपल का फिर हम प्लाज्मा निकालते हैं। तो कभी भी जब भी डिफरेंशिएट करने की बात आती है तो कैपिलरी ब्लड 10 से 15% या 20% तक ज्यादा रह सकता है वर्सेस दिस। परंतु अब जो ग्लूकोमीटर्स आए हैं वो प्लाज्मा कैलिब्रेटेड ग्लूकोमीटर्स आए हैं। तो आप जब भी लेने जाएं तो ये देखें कि प्लाज्मा कैलिब्रेटेड ग्लूकोमीटर, तो जो भी आपने कैपिलरी से ब्लड लिया है परंतु फिर भी वो प्लाज्मा के इतना ही करीब करीब रीडिंग देंगे और वो प्लाज्मा कैलिब्रेटेड ग्लूकोमीटर्स होते हैं। उसी तरह उसमें कुछ कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में भी हम बाद में कभी बात करेंगे, परंतु वो भी आपने देखना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी का यदि ग्लूकोमीटर लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और इस बारे में शायद प्रताप जी को और कुछ नॉलेज होगा या राकेश जी बताना चाहें स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्लूकोमीटर तो वो बता सकते हैं। पर मेरे हिसाब से हमने सभी ग्लूकोमीटर्स करीब करीब अच्छे होते हैं, उसका कैलिब्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बार बार आप यदि उसको कैलिब्रेट करते रहे। स्ट्रिप्स यदि आपने, उसमें नियम रहता है कि आपने लेने के बाद में कुछ इसमें 6 महीने के अंदर, कुछ इसमें 3 महीने के अंदर आपने स्ट्रिप यूज करना चाहिए। अब हमारे भारत देश की भावनाएं क्या है कि एक बार खरीद लिया तो हम
साल में महीने में एक बार टेस्ट करते हैं, उसको साल भर स्ट्रिप्स चलाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है। इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, शायद वो क्वेश्चंस और आगे होंगे प्रताप जी की लिस्ट में कि हमने ग्लूकोमीटर करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खरीदने के अलावा भी वो आप हम लोग और बातें करेंगे। बट दिस इज व्हाट अबाउट मॉनिटरिंग, आई जस्ट हैव स्पोकन लिटिल बिट ऑन दिस, होपफुली इट इज यूजफुल। प्रताप जी, ये नहीं, बहुत बहुत जरूरी बातें हैं ये किसी भी पेशेंट के लिए, जब भी आप ग्लूकोमीटर मंगाते, जैसे आप कोई चीज अपने लिए। प्रताप जी, हम लोग बार बार थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट हमको ना, हम हमारे मधुमेही लोग हैं, तो हम उनको थोड़ा सा, हम पेशेंट ना बोलते हैं, पीपल विद डायबिटीज है, ये लोग हमारे इनको हम दे आर नॉट पेशेंट, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए, हम लोग उसको बीमार नहीं बनाना चाहते। तो नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे जो ये मधुमेही है, उनके लिए ग्लूकोमीटर जब भी लें, तभी आप जैसे दूसरी और कोई चीज खरीदते हैं, उसके लिए जैसे डिटेल में देखते हैं सब चीजें, वो देख के खरीदना चाहिए, और आपके जो डॉक्टर है उनके साथ डिस्कस करके, उनसे समझ के फिर ग्लूकोमीटर खरीदेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये चीज आपके लिए जरूरी है जानना। और ग्लूकोमीटर खरीदे तभी उसकी स्ट्रिप भी आपको मिलनी चाहिए। कई बार क्या है कि लोगों को ग्लूकोमीटर बाहर से कोई गिफ्ट भेज देता है, यूएसए से या यूके से, फिर वो जो स्ट्रिप्स होती है वो खत्म हो जाए, उसके बाद उसकी स्ट्रिप्स ही नहीं मिलती है, तो वो ग्लूकोमीटर वो फिर काम का ही नहीं रहता है। तो आपको ऐसी चीज खरीदनी चाहिए जिसके लिए आपको स्ट्रिप्स इजीली अवेलेबल हो और आप उसको अच्छी तरह से यूज कर सके। राकेश जी, आपको और कुछ इसके बारे में बोलना हो तो? नहीं, एक और बात ये बता देंगे कि आप जब कॉस्ट देखते हैं ग्लूकोमीटर का, तो आप ग्लूकोमीटर के इंस्ट्रूमेंट का ही कॉस्ट मत देखिए, आप स्ट्रिप्स का भी कॉस्ट देखिए। कभी कभी आपको, आप इंस्ट्रूमेंट को सस्ता खरीद लेंगे, लेकिन उसके स्ट्रिप्स अगर ज्यादा महंगे होंगे, तो आपको रिकरिंग कॉस्ट जो स्ट्रिप्स का होगा वो भी देख लेना चाहिए। तो ये ध्यान में रख के आप खरीदना चाहिए। लेकिन कुछ ग्लूकोमीटर्स में आजकल, इस पर हम बात कर रहे हैं इसलिए, कुछ ग्लूकोमीटर में आजकल ब्लूटूथ की भी इनबिल्ट सुविधा है, और उससे आपके डायरेक्ट आपके मोबाइल पर पूरी रीडिंग्स आ जाती हैं। आप अपने डॉक्टर के यदि चेंबर में जाएंगे तो वहां पर यदि वो इनबिल्ट प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर के साथ में, तो वो इनबिल्ट हो जाता है, आपके पास पूरा ग्राफ आ जाता है। तो यदि आप यदि इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहें, जरूरी नहीं है कि सबके पास वही होना चाहिए, पर आप वह भी यूज किया जा सकता है, जिससे कि आपके पास, सपोज आपने एक महीने में 10 बार शुगर करी या एक साल में 100 बार शुगर करी, तो आपका पूरा साल भर का, 6 महीने का, 3 महीने का आपका ग्राफ आ जाएगा। सिंपल थिंग है, पैसा उतना ही खर्चा हो रहा है, हार्डली, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा महंगे नहीं है ग्लूकोमीटर जैसा बताया, और स्ट्रिप्स भी आजकल पहले जैसी नहीं है। जब मैंने प्रैक्टिस चालू किया था तो पता हूँ, शायद राकेश जी भी एग्री होंगे, कि हम लोगों ने पहले 25,000 का ग्लूकोमीटर खरीदा था मैंने, जब 1994 की बात है, और उस समय स्ट्रिप की कॉस्ट थी कुछ 70 या 80 पे एक स्ट्रिप आती थी, और तब हम लोग लेते थे वो स्ट्रिप्स। तो उसकी तुलना में आज की तारीख में काफी आप लोग नसीबवान है कि हर चीज की कॉस्ट कम और कम होती जा रही है, ऐसा नहीं कि बढ़ रही है, इट इज स्टिल रिड्यूसिंग। तो ये आप लोगों के लिए खास जानकारी कि ग्लूकोमीटर खरीदते वक्त आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है और किस तरीके से ग्लूकोमीटर का आपको चयन करना है। अभी इससे आगे बढ़ेंगे, जैसे डॉक्टर सुनील गुप्ता जी ने अभी बताया कि कई बार ग्लूकोमीटर में जो वैल्यू आती है और आप लेबोरेटरी में जो वैल्यू लेते हो उसमें फर्क आता है। ऑलरेडी उन्होंने आपको बता दिया है कि क्या क्या फर्क होता है, पर उसके बारे में थोड़ा और मैं डॉक्टर राकेश शाही जी को बोलूंगा कि उसके बारे में थोड़ा विस्तृत में बताए कि क्यों ये डिफरेंस आता है और कौन से टाइम पे ये डिफरेंस ज्यादा होने का चांस है। डॉक्टर सुनील गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया कि जब आप ब्लड ले रहे हैं, लैब में जब ब्लड दे रहे हैं, तो वीनस ब्लड लिया जा रहा है। तो वीनस ब्लड जो होता है वो हार्ट को वापस जा रहा है, और जो आर्टीरियल, जो कैपिलरी से लेते हैं अपन, जो जब से ग्लूकोमीटर से करते हैं, तो वो कैपिलरी ब्लड होता है। कैपिलरी ब्लड जो भी हार्ट से आया है, वो ब्लड में जो है थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है। क्या इस टाइम, मतलब जैसे आप खाने के बाद देख रहे हैं, मतलब आपके भोजन के बाद अगर आप देख रहे हैं, 2 घंटे बाद देख रहे हैं, तो कैपिलरी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जरा ज्यादा होती है, और वीनस जब वो टिश्यू एक्सट्रैक्ट कर लेता है ग्लूकोज, और जब वापस जाता है वीनस फ्लो में, तो जब उसकी ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। और दूसरा चीज ये होता है कि जो कैपिलरी ब्लड जो देखते हैं अपन, कैपिलरी ब्लड ये है कि होल ब्लड देख रहे हैं आप, जो आप ग्लूकोमीटर में टेस्ट कर रहे हैं, तो होल ब्लड है, यानी कि ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा सब मिला हुआ है। वेरएज वीनस ब्लड में जो करते हैं, तो उसको सेपरेट करके प्लाज्मा निकाल के उसमें देखते हैं, तो प्लाज्मा का वैल्यू जरा ज्यादा होता है, होल ब्लड का वैल्यू थोड़ा कम होता है। तो जमा खर्च ये होता है कि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, खाली खाने के बाद, मतलब पोस्ट मील जो वैल्यू देखते हैं आप,
तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 10-15% ज्यादा हो सकता है कैपिलरी ब्लड में। बट जैसा सुनील गुप्ता जी ने बताया है कि आजकल जो नए ग्लूकोमीटर्स आ रहे हैं वो कैलिब्रेटेड हैं, वो प्लाज्मा कैलिब्रेटेड है, तो आपको प्लाज्मा का वैल्यू देंगे, वीनस प्लाज्मा वैल्यू जो आना चाहिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दोनों में ज्यादा फर्क है। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है आपको कि जब आप कोई टेस्ट करते हैं, आप टेस्ट अगर दो बार करेंगे, आप 2 बार साइन करते हैं तो सिग्नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है। वैसे ही जो है आप जो भी टेस्ट 2 बार करते हैं तो उसमें एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रहता है, जो भी 5% से कम रहेगा, 2-3%, 5% से कम रहेगा तो एक्सेप्टेबल है। तो वैसे आप जो है अगर 2 ग्लूकोमीटर में टेस्ट करेंगे तो 5-10 मिलीग्राम का फर्क रह सकता है। बट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये जानना है कि आपको जो आप जब ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो आपको आपके ट्रीटमेंट में गाइडेंस मिल रहा है। सेकेंड थिंग, आप किसी परेशानी में हैं, आपको परेशानी हो रही है, आपको क्या बोलते हैं, स्वेटिंग हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, और आप जब टेस्ट करके देखते हैं तो आपको अगर 50 या 60 रीडिंग आ रहा है तो दैट इज क्लियर कट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आप वीनस प्लाज्मा में करते हैं 5-10% आगे पीछे होगा तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका एक्शन वही रहेगा। आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है, और अगर 400 रहेगा तो आपको जो है 400 या 350 या 400 रहेगा तो भी आपको सेम मैसेज मिलने वाला है। तो आपको जो है ग्लूकोमीटर के बारे में इतना संदेह नहीं रखना है, आपको जो है इसको ठीक तरह से इस्तेमाल करना है, और उसकी जो रीडिंग्स आ रही है उसको आप यूटिलाइज करना है आपकी ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन में और ट्रीटमेंट को बराबर प्लान करने में। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करूं प्रताप जी, परमिशन हो तो? हाँ। एक और अच्छा डाटा भी है जिसमें ऐसा बताया गया है कि यदि आपकी शुगर समझ लीजिए कि 80 और 220 के बीच की रेंज में चल रही है ऑन एन एवरेज, तो जो वेरिएशंस हैं दोनों ग्लूकोमीटर वर्सेस वीनस सैंपल में या विल बी अराउंड 5% और सो, जैसा बहुत अभी राकेश जी ने बताया। पर आपकी शुगर यदि 400 है तो शायद वो वेरिएशन ज्यादा भी हो सकता है, 10 से 15-20% भी हो सकता है। यदि मैंने आपके एक ही व्यक्ति का सैंपल, यदि अपन ने 4 ब्लड सैंपल यदि लैब में भी निकाला और 4 अलग अलग लैब में भेज दिए, एक नागपुर में भेज दी, एक हैदराबाद में भेज दी, एक अहमदाबाद में भिजा दी, एक न्यूयॉर्क भिजा दी, एक टोक्यो भिजा दी और एक सिडनी भिजा दी, तो भी उसमें सैंपल में 4, 5, 8 सैंपल में कम से कम 5 से 10% का वेरिएशन आ सकता है, जो एक्सेप्टेबल है। और लोगों के मन में जो ग्लूकोमीटर के बारे में एक जो मिथ्या है या जो गलत धारणा है, ये ध्यान रखें कि यह वह ग्लूकोमीटर है जो हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर में, क्रिटिकल केयर में, जब पेशेंट को व्यक्ति को शुगर एकदम 600-700 जाती है, तब हम इंसुलिन की ड्रिप लगा के हर आधे घंटे में इसी ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं। जब आपका बाईपास सर्जरी होता है तब भी ग्लूकोमीटर से हर आधे घंटे में टेस्ट होता है, 15-15 मिनट में टेस्ट होता है। जब आपका किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का टेस्ट होता है, छोटा मोटा ऑपरेशन हो या क्रिटिकल केयर में सीरियस व्यक्ति हो, उसका सैंपल हम निकाल के ब्लड लैब में नहीं भेजाते, ग्लूकोमीटर से ही मैनेज करते हैं, और वो तभी होगा जब उसमें एक्यूरेसी होगी। तो उसकी एक्यूरेसी के ऊपर शक करना मेरे ख्याल से आज की तारीख में, जब अपने एडवांसेस हो चुके हैं, पूरी तरह से एक प्रकार से गलत धारणा है, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए और उस पर विश्वास करते हुए। और अब डॉक्टर, कई बार बड़े कुछ लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे ग्लूकोमीटर में 122 आया और मैंने जब दूसरी बार दूसरे लैब में दिया तो वहां 118 आया। अरे 118 और 122 में भाई साहब फर्क नहीं है, आप दोनों भी जैसे ही है, उसको अपने दिमाग में मत रखिए। 118 में भी वही ट्रीटमेंट रहेगा, 122 में भी वही ट्रीटमेंट रहेगा। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स। जी वो, हाँ गुप्ता जी, जैसे आपने बताया कि वो हाईली रिलायबल है, उसके ऊपर कोई एक्यूरेसी के बारे में कुछ डाउट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ग्लूकोमीटर हम 15% वेरिएशन रहेगा ऐसा मान के चलो हमेशा। जी हाँ, और ग्लूकोमीटर हम जो खरीदते हैं, आप जो यूज करते हैं, वो हम ट्रेंड्स के लिए भी देखते हैं। जैसे आपने अभी आपको डायबिटीज हुई है, आपने शुगर मापा है, आपका भूखे पेट का 200 आया है, खाने के बाद का 400 आया है, भले लेबोरेटरी में थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे आई है, पर अगर आप घर पे आप रोज मॉनिटर करते हैं, आप खाने में चेंज कर रहे हैं, आप चलना शुरू कर रहे हैं, आपको दवाइयां दी गई है, तो आप खुद देख पाएंगे कि रोज ब रोज वो ग्लूकोज कम होता जाएगा। वो आपको बताएगा कि आपकी ट्रेंड कम हो रही है, आप जो कर रहे हैं वो काम कर रहा है। तो मेन उस चीज के लिए आपके लिए ग्लूकोमीटर बहुत जरूरी है। एब्सोल्यूट वैल्यू में जो भी आप रिपोर्ट करेंगे उसमें थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बट इससे अगर आप रेगुलरली ग्लूकोमीटर यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया रहेगा कि आपकी वैल्यूज किस तरीके से कम हो रही है, किस तरीके से ज्यादा हो रही है, और उसके ऊपर से आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ट्रीटमेंट प्लान करने में। तो उसके लिए ये चीजें जरूरी है जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो ग्लूकोमीटर, अभी हमने ग्लूकोमीटर खरीद लिया, अभी हमें ग्लूकोमीटर यूज करना है। सब लोग जानते हैं ग्लूकोमीटर कैसे यूज करना है, बट बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उसमें बहुत मायने रखती है। तो मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता जी से वापस एक विनती करूंगा कि एक मेन पॉइंट्स जो पेशेंट को ध्यान में रखने चाहिए जब भी ग्लूकोमीटर यूज करे, जो 3-4 चीजें मेन है जो उनके दिमाग में पहले आनी चाहिए, जो उनको फॉलो करनी चाहिए ग्लूकोमीटर का सही इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो सभी मधुमेही लोग ध्यान रखें कि यदि जब भी हम ग्लूकोमीटर को यूज करने के लिए निकालते हैं, जो स्ट्रिप्स हैं, वो स्ट्रिप की बॉटल जब आप खोलते हैं तो वो बहुत देर तक खुली नहीं रहना चाहिए। उसको एक आपने स्ट्रिप निकाल ली और उसको बंद कर देना चाहिए यदि आपकी मल्टीपल वाली बॉटल वाली स्ट्रिप्स है। तो यदि आपकी सिंगल कुछ अलग आती है स्ट्रिप्स, इसमें सिंगल स्ट्रिप के भी आती है कुछ स्ट्रिप्स, तो फिर बात अलग है, आपने एक ही स्ट्रिप निकाली यूज किया। परंतु मैक्सिमम जो आती है वो 25 का पैक आता है या 50 का पैक आता है। तो जब भी आप खोलते हैं तो एनवायरमेंट की जो क्योंकि वो एयर टाइट बॉटल होती है तो एयर या ह्यूमिडिटी उसमें एंटर नहीं होती है और स्ट्रिप्स की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करती है। तो ये पहला मैसेज। दूसरा चीज, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्ट्रिप्स है। कुछ स्ट्रिप्स में आप अपने आप ब्लड आप चला जाता है, पर ब्लड लेते समय इंपॉर्टेंट है जब आप ब्लड प्रिक करते हैं तो आप अक्सर लोग 90%, हर व्यक्ति यदि मैं पूछूंगा 90% लोग उसको सेंटर में प्रिक करते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअली जो हमारी वेन्स हैं वो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान से देखिए कैमरे की तरफ कि आपकी जो वेन्स है वो इस तरह से रन करती है अराउंड दी आपका जो टिप है फिंगर का अराउंड रहती है। जब आप बीच में करते हैं तो वहां आपकी वेसल्स कम होती हैं, तो जब आप बीच में करते हैं तो ब्लड अच्छे से नहीं आता है। तो इसीलिए आपने जब प्रिक करते समय उसको अराउंड दी फिंगर लेना है, ना कि बीच में लेना है, तो आपका ब्लड इजीली आ जाएगा। प्रेस करते समय बहुत ज्यादा प्रेस करेंगे तो कई बार ब्लड डाइल्यूट भी हो सकता है और उससे रीडिंग कम ज्यादा हो सकती है। कई बार ठंडी के दिनों में यदि आपने बहुत जोर से प्रेस करते रहे, ब्लड नहीं आ रहा है, तो उससे रीडिंग में फर्क पड़ सकता है। इजीली यदि ब्लड आता है तो अच्छा है। थोड़ा सा वार्म कर लिया, पहले क्लीन करना इंपॉर्टेंट होता है। क्लीन करने के लिए आपने यदि आप अल्कोहल का स्वाब ले सकते हैं या गर्म स्टेराइल वाटर का स्वाब ले सकते हैं और उससे करें। एक बहुत अच्छा किस्सा मैं बताना चाहूंगा, शायद राकेश जी भी पहली बार सुनेंगे किस्सा और प्रताप जी भी और अनिल जी भी। हमने एक बीच में कैंप लिया था और वो कैंप में कैंप में एक कैंप खत्म हो गया और बहुत सारे वॉलंटियर्स थे। हमने बोला चलो वॉलंटियर्स का सबका कर लेते हैं ब्लड शुगर। तो कुछ लोग एकदम दौड़ते दौड़ते आए, डॉक्टर साहब हमारा तो सबका, किसी का 400 आ रहा है, किसी का 500 आ रहा है और ग्लूकोमीटर से हो रहा था कैंप। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया कि ये नए नए बच्चे हैं सब 18, 20, 22 साल के, इनके कैसे क्या 400, 500 शुगर आ रहे हैं। तो फिर जब देखा तो वो सबके सब वहां पर हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे थे और वो ग्लूकोज मिला के वो लोगों को 75 ग्राम ग्लूकोज मिला के दे रहे थे जीटीटी करने के लिए। तो जब उनको बोला कि अरे आपके हाथ में ग्लूकोज के पार्टिकल्स होंगे, इसके कारण ये हो सकता है, आप पहले हाथ धो के आइए और फिर से टेस्ट कराइए, तो सबके शुगर फिर नॉर्मल हो गए। तो इस तरह से जब आप शुगर करते हैं तो पहले अपना हाथ अच्छे से वॉश करें। अभी हैंड वॉश के बारे में कोरोना ने इतना अच्छे से पढ़ा दिया है कि मुझे फिर से ये बताने की जरूरत नहीं कि हैंड कैसे वॉश करें। जगह को अच्छे से आप क्लीन करें। उसको पहले अल्कोहल को जब आप लगाते हैं तो उसको पहले सूखने दें। आप कई बार गीले इसमें ही आप फिर से प्रिक कर देते हैं तो अल्कोहल से भी हमारी शुगर का इम्पैक्ट आ सकता है, जो कुछ पार्टिकल्स का। तो हाथ साफ हो जाए, साफ होने और जलन हो सकती है कभी कभी जब आप उसको प्रिक करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हमने ध्यान रखना चाहिए। फिर जब आप ग्लूकोमीटर, मैक्सिमम ग्लूकोमीटर जो है वो आजकल कोई 10 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में, कोई 14 सेकंड में ऐसा दे देते हैं। कुछ पुराने वाले तो 1-1 मिनट तक देते थे, पर वो दे सकते हैं। और जब आप लगाते हैं उसकी स्ट्रिप्स को, तो स्ट्रिप्स को कुछ इसमें आपको ऊपर से डालना पड़ता है, कुछ इसमें अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो अपने एब्जॉर्ब वाला है उसमें ह्यूमन एरर थोड़ी सी कम होती है, जो खुद कैपिलरी प्रेशर से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है आपके ब्लड को। तो बहुत कम ब्लड लगता है, बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत नहीं होती। जो छोटे छोटे इन्फेंट होते हैं या जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, जिनमें आप उंगली से नहीं ले सकते, उनमें आप पैर के अंगूठों से भी ले सकते हैं और एडी से भी ले सकते हैं यदि सैंपल चाहे तो।
खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन, जब प्रेगनेंसी डायबिटीज में जब बच्चा होता है जो पहले दिन, तो उसका हम जब शुगर करते हैं तो उसके अंगूठे से ना लेते हुए उसके पैर के अंगूठे से या फिर एडी से लिया जाता है। राकेश जी, आप कुछ इसमें और ऐड करना चाहेंगे? राकेश जी, आपकी तरफ से। नहीं, आई थिंक सुनील गुप्ता जी ने काफी अच्छा बताया है, सब कुछ, सब पॉइंट्स बताए हैं इसमें, जो प्रिकॉशंस लेना है। और स्ट्रिप की एक्सपायरी देखना जरूरी, जैसे हमने पहले बताया कि स्ट्रिप की आप एक्सपायरी देख लीजिए, बराबर है नहीं है, है ना? स्ट्रिप की एक्सपायरी देखना जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सुनील गुप्ता जी ने पहले बताया था कि जो अगर आप स्ट्रिप कब खोले हैं देखना है, क्योंकि स्ट्रिप का अनओपन्ड एक्सपायरी डेट में भी आफ्टर अ ईयर, बट अगर आप आज अगर बॉटल खोल देते हैं तो बॉटल खोलने के 3 महीने या 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर, अक्सर 3 महीने होता है, 3 महीने के अंदर आपको इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप अनओपन्ड एक्सपायरी डेट देख रहे हैं तो वो अलग होगा, और ये एक्सपायरी अलग है। जब आप ओपन कर दिए हैं तो 3 महीने के अंदर इस्तेमाल करना है। यानी 3-4 क्विक फायर क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे ऑडियंस की तरफ से आए हैं, और उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि इज देयर एनी पर्टिकुलर फिंगर व्हिच इज टू बी प्रिक्ड? जल्दी में सर इनके शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल फिंगर्स आर सेम। नेचुरली यदि हम छोटी वाली फिंगर बोलेंगे तो वहां पर प्रिक में थोड़ा तकलीफ होगा, बट इफ यू टेक मिडिल फिंगर और द इंडेक्स फिंगर एंड द रिंग फिंगर पॉसिबली इज बेटर। सर एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या हमें फिंगर को स्क्वीज करके ब्लड निकालना चाहिए? बहुत ज्यादा स्क्वीज नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है उसको। यदि आपने थोड़ा वार्म वाटर से या इससे क्लीन किया तो शायद वहां पर सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा होगा, और फिर आप करेंगे। पर बहुत जोर से, जब कई बार वो मैंने बताया ना, बीच में जब करते हैं तब स्क्वीज करने की जरूरत पड़ती है। यदि आप साइड में करेंगे तो स्क्वीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि जब आप स्क्वीज करते हैं तो थोड़ा सा प्लाज्मा लीक होता है एंड ब्लड शुगर की वैल्यू अफेक्ट हो सकती है। राकेश सर, एक सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ सर, एक सवाल हो रहा है कि क्या हमें जो फर्स्ट ड्रॉप आता है ब्लड का, उसको वाइप करके दूसरा ड्रॉप लेना चाहिए, या फर्स्ट ड्रॉप से ही ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए? नहीं, फर्स्ट ड्रॉप पे कर सकते हैं, वाइप करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डू इट ऑन द फर्स्ट ड्रॉप। और मेरे हिसाब से हाथ रब कर देना, थोड़ा रब करके फिर प्रिक करना, दैट इज द सबसे इजी तरीका है। और सर एक स्ट्रिप्स की बात हो रही थी, तो जस्ट आई थॉट कि एक सवाल स्ट्रिप से रिलेटेड है कि क्या उसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए? रूम टेम्परेचर, इट शुड बी एट द केप्ट एट द रूम टेम्परेचर, नॉट नेसेसरीली इन द कोल्ड टेम्परेचर। बट यदि आप उसको एक्सपोज्ड एरिया में ना रखें, मींस दी सन एक्सपोजर के एरिया में ना रखें, ऐसा मेरा परसेप्शन है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ना रखें। दो ही चीजें, हाँ, सनलाइट में नहीं होना चाहिए और ज्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये दो चीजें स्ट्रिप्स में, और खास करके जब भी आप स्ट्रिप खोलते हैं डब्बी, तो इमीडिएटली उसको क्लोज कर देना, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी खुला रह गया तो आपकी स्ट्रिप्स का पूरा वैल्यू में ऑल्टरेशन आ सकता है, तो वो खास ध्यान। और एक बार एक मधुमेही ने ऐसे किया, और वो उसने स्पिरिट की बोतल थी, तो गलती से वो स्पिरिट की बोतल के कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर चले गए। अब क्योंकि हम भारत देश के लोग हैं तो हम फेंकते तो नहीं वो चीज को, हमने यूज करना शुरू किया और इरेटिक रीडिंग्स आना शुरू हो गई, तो इट विल स्पॉइल। जैसे ही उसने स्पिरिट के बोतल साथ में थी और इधर स्ट्रिप की बोतल थी, कुछ ड्रॉप्स नहीं, नॉट, हाँ, स्ट्रिप्स की बोतल थी, स्ट्रिप की बोतल के अंदर स्ट्रिप के बोतल के अंदर स्पिरिट चला गया, तो उससे तकलीफ हो गई। तो ऐसा दिस आर ऑल एक्सपीरियंसेस व्हिच यू माइट फेस। सो सही बात है। और कोई क्वेश्चन अमित है कि आगे बढ़े? सर प्लीज प्रोसीड। यस, अभी हमने ग्लूकोमीटर कैसे खरीदना, ग्लूकोमीटर कैसे यूज करना, ये सब हमारे मधुमेही दोस्तों को बता दिया है। अभी आगे हम जानेंगे कि कभी ब्लड शुगर टेस्ट करना है। ये हर एक मधुमेही के लिए ये अलग अलग रहेगा। कोई टाइप 2 डायबिटीज वाला है, खाली खाने की परहेज से और वॉकिंग से वो शुगर कंट्रोल कर रहा है, कोई खाली गोलियां ले रहा है, गोलियां भी अलग अलग तरह की आती है, कोई सल्फोनिलुरिक की गोलियां ले रहा है, कोई दूसरे तरीके की गोलियां ले रहा है, कोई इंसुलिन पे है, या कोई दवाइयां इंसुलिन साथ में ले रहा है। तो हर किसी के लिए ग्लूकोमीटर से शुगर करने की अलग अलग तरीके की रिकमेंडेशन होती है। तो पहले मैं डॉक्टर राकेश साई जी से जानना चाहूंगा कि टाइप 2 डायबिटिक जो पेशेंट्स है, जो अलग अलग तरीके के होते हैं, खाली गोलियों पे होते हैं या गोलियों और इंसुलिन दोनों में होते हैं,
तो उन लोगों को किस तरीके से ये ग्लूकोमीटर से शुगर नापना चाहिए, कौन से टाइम पे नापना उनके लिए जरूरी है? तो ऐसा है कि जैसा जेठवानी जी ने बताया है कि ग्लूकोमीटर यूज करना सभी को अलग अलग तरीके से यूज करना है, मतलब किसी को ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करना है, किसी को कम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जानना है कि अपने को ग्लूकोमीटर किस चीज के लिए यूज करना है। एक तो अपने को ये पता करना है कि शुगर कंट्रोल कैसी है। दूसरी चीज ये है कि आपके डाइट का आप ये देख सकते हैं कि इफेक्टिवनेस कितना है, आपके एक्सरसाइज से कितना फर्क पड़ रहा है, ये सब भी आप जान सकते हैं। अगर आप ग्लूकोमीटर यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, तो आप ये सब जान सकते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर आप देख रहे हैं कि जो दोज पेशेंट्स हु आर ऑन जस्ट डाइट एंड एक्सरसाइज और कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, खाली डायबिटीज इससे ही कंट्रोल है, तो उन लोगों को ये है कि आप हफ्ते में एक बार देखें या 15 दिन में एक बार देखेंगे तो भी बस हो जाएगा, मतलब इट इज इनफ टू give you enough information on that. But these same patients can actually get more information about their diet. They can see with different diets how their glucose levels are after 2 hours after a particular diet that they're taking. If they go out for a party and they take the food that they take there, what is it after that? What is it after home food? So they can know different things from that, and they can know what type of food is working well for them, what type of food is causing a major excursion in their glucose levels. So they can understand that, and they can appropriately make changes in their diet, and they can also understand how the sugar levels are after exercise and how it is after if they miss exercise for 2 or 3 days, then they can see that the sugar levels keep going up. So all these things can also be understood. So अगर कोई ये जानना चाह रहा है, ये सब स्टडी कर रहा है और खुद समझ में आ रहा है, ये सब कुछ समझ सक रहे हैं, तो they may use it more frequently. But otherwise, even if they use it once or twice in a week or once in 2 weeks also, that is good enough for a person who is not on any medication. अब ये देखिए, आप जो दवाई ले रहे हैं तो उनको ये है कि उनको आइडियली अगर ग्लूकोमीटर आप घर पे कर रहे हैं तो आप हफ्ते में 2-3 बार तो करिए, तो उससे आपको फायदा होगा। और उससे ये भी होगा कि आपको जो है जो स्ट्रिप्स आपको 3 महीने में फिनिश करनी है तो आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, और उससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आपको डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चल रहा है, और आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो आप ये सब आपका जो भी आप कर रहे हैं, जो भी रीडिंग्स ले रहे हैं, वो आप नोट करिए। वो इम्पोर्टेंट, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जितने बार भी कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सब नोट करके रखिए, सो दैट अगर आपका ग्लूकोमीटर जैसे ब्लूटूथ एनेबल्ड है तो आपके रीडिंग्स पूरे आपके फोन में आ जा सकते हैं, आप उसका टैबुलेशन निकाल सकते हैं और डॉक्टर के पास भी भिजा सकते हैं। बट अदरवाइज जो आप अदर ग्लूकोमीटर्स यूज करें जिसमें आप ब्लूटूथ और ये फैसिलिटी नहीं भी होगी, तो भी आप एक टेबल बनाइए जिसमें आप नोट करिए आप रीडिंग्स जो टाइम पे देख रहे हैं, डेट और टाइम नोट करके आप रीडिंग्स नोट करिए। तो आप जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये ले जाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी डॉक्टर को भी समझने में कि आपके ब्लड शुगर रीडिंग्स कैसे हैं और ट्रेंड्स क्या हैं, देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट दवाई दे सकते हैं। तो दिस इज अबाउट पेशेंट्स हु आर on say oral medications, oral tablets for diabetes. अब ये देखिए कि जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको और भी ज्यादा मॉनिटर करना है, मतलब उनको दिन में 1 या 2 बार एवरी डे मॉनिटर करना है। तो उससे ये जान सकते हैं कि जो इंसुलिन की डोज एडजस्टमेंट करना है उसके हिसाब से कर सकते हैं। पर्टिकुलरली फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स देखिए, या आफ्टर ए मील, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। So these are the usual time points जो आप देखना चाहेंगे, और उसको आप अगर आप रोज देखते हैं, every day if you see all the 5 or 7 readings, that may be very ideal, very good, it may be very helpful. But if you're not able to do that, you may even do 2 readings in a day and do the 2 different readings on one day। मतलब आप जैसा ब्रेकफास्ट के पहले और ब्रेकफास्ट के बाद एक दिन देखिए, एक दिन लंच के बाद का और डिनर के बाद का देखिए, और एक दिन फिर आप वापस ब्रेकफास्ट के पहले का देखिए। तो जब आप ये 4-5 दिन का ग्राफ देखते हैं, 4-5 दिन का टेबल देखते हैं, तो आपको पूरी तरह से आपको पता चल जाता है कि किस टाइम पे ब्लड शुगर बढ़ रही है, किस टाइम पे एडजस्टमेंट करना है, किस मील में एडजस्टमेंट करना है, किस डोज ऑफ किस इंसुलिन में एडजस्टमेंट करना है। ये सब आप भी समझ सकते हैं, आपके डॉक्टर साहब भी आपको बहुत ही आसानी से आपको इसके बारे में आपको समझा सकते हैं, और आपको उसके हिसाब से आपके इंसुलिन के एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
सुनील जी, आप कुछ इसमें और ऐड करना नहीं, चाहेंगे? इसको बहुत अच्छा ऑलरेडी आई फील राकेश ने बहुत अच्छे से बता दिया है। इसमें एक स्टैगरिंग मेथड जैसा इन्होंने बताया, उसको स्टैगरिंग मेथड बोलते हैं। सबके पास एक्चुअली एक चार्ट होना चाहिए, ध्यान रखिए, एक चार्ट होना चाहिए। इसमें फास्ट उसका टेबल बना लीजिए घर में, फास्टिंग, खाली पेट, प्री लंच खाना खाने के पहले, खाना खाने के 2 घंटे बाद, रात के खाना खाने के पहले, रात के खाना खाने के 2 घंटे बाद, और एक रात का 3 बजे। इस तरह से 6 रीडिंग हम लोग बोलते हैं करने के लिए। अब जो लोग मल्टीपल डोज ऑफ इंसुलिन, जैसे टाइप 1 व्यक्ति है और वो दिन में 4 बार इंसुलिन ले रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हम लोग रात में देते हैं, तो इस तरह से 4 बार यदि इंसुलिन के पिक चालू है तो आइडियली 6 पॉइंट ब्लड ग्लूकोज, 6 to 8 पॉइंट्स मॉनिटरिंग हम लोग बोलते हैं। परंतु ये बहुत बार भारत देश के परिवेश में और बहुत सारे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने के कारण वो कई बार पॉसिबल नहीं भी हो पाता है। तो जैसा बताया कि आप रोज के 2 रीडिंग कर सकते हैं, या कभी बहुत ही आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है, स्पेशली आप 1 बार ही इंसुलिन ले रहे हैं या 2 बार ही इंसुलिन ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप रोज का 1 बार तो कम से कम करना ही है। और उस समय आप एक दिन खाली पेट कर लीजिए, एक दिन खाने के पहले, दूसरे दिन खाना खाने के बाद, चौथे दिन रात के खाना खाने के पहले, 5वें दिन रात का खाना खाने के बाद, और 6वें दिन रात को 3 बजे का अलार्म लगा के रात का 3 बजे का भी 1 बार शुगर कंट्रोल करें। और यह पता लगाना हमारे मधुमेहियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रात का 3 बजे ये गुप्ता साहब या राकेश जी या प्रताप जी क्यों बोल रहे हैं कि रात का 3 बजे करें। तो आप सभी लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, हम लोगों में को डायबिटीज हो या डायबिटीज ना हो, रात को 2 और 3 बजे के बीच हम सभी की शुगर सबसे ज्यादा कम होती है 24 घंटे में। और जब आप दवाइयां, एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेते रहते हैं, चाहे वो गोलियां हो चाहे वो इंसुलिन हो, तो जो लो शुगर की रिस्क है वो रात को 2 और 3 बजे के बीच सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए जब आप इंसुलिन लेते हैं या ऐसी गोली लेते हैं जिससे लो शुगर की रिस्क ज्यादा होती है, ऐसी दवाइयां लेते समय रात में कभी आपको घबराहट होती है, रात में पसीना आता है, कभी भूख लगती है, कभी डरावने सपने दिखते हैं, और ऐसी कंडीशन में रात में ये भी हो सकता है कि रात में आपको लो शुगर के कारण ये सब हो रहा हो, और ऐसी कंडीशन में हमने रात की 3 बजे की भी शुगर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि खाली पेट शुगर आपकी 200 आ गई, परंतु आपकी रात की खाना खाने के पहले आपने करी थी तो वो तो 150 ही थी, रात की खाना खाने के बाद की भी नॉर्मल थी, फिर एकदम से खाली पेट क्यों रात सवेरे 200 और 300 आ गई। तो यह कभी कभी, इसको हम लोग सोमोगी फिनोमेना बोलते हैं, कि रात की 3 बजे यदि आपकी शुगर 70 के भी नीचे जाती है, लो शुगर होता है, या 54 के नीचे जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सवेरे खाली पेट की शुगर बढ़ जाती है, जिसको हम लोग सोमोगी इफेक्ट बोलते हैं। और उस समय हमको अपने डोजेस रात के इंसुलिन या गोलियों को डोजेस को कम करना पड़ता है। दूसरा होता है डॉन फिनोमेना, जिसमें कि रात की 3 बजे की भी बढ़ी हुई जाती है और सवेरे 7 बजे की भी खाली पेट की बढ़ी हुई जाती है। ऐसी कंडीशन में रात की दवाइयों के डोजेस बढ़ाने पड़ते हैं। तो जब हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार, स्पेशली यदि आप टाइप 1 डायबिटीज है और यदि आपको इंसुलिन मल्टीपल डोजेस चालू है टाइप 2 डायबिटीज में, तो ऐसे लोगों को रात को 3 बजे भी हफ्ते में 1 बार कम से कम शुगर करनी चाहिए। बाकी चार्ट तो बताया, चार्ट बना के रखिए और चार्ट में लिखना भी सीखिए। जितना आप अच्छे से उसको लिखेंगे, एंटर करेंगे, उतना अच्छे आपके डॉक्टर को सहूलियत होगी, जैसा राकेश जी ने बताया। बहुत सही बताया आपने सुनील गुप्ता जी। तो हर मधुमेही को जो ग्लूकोमीटर यूज करते हैं, आपके पास खुद का चार्ट होना चाहिए जिसमें आपको शुगर की वैल्यू एंटर करनी है। आपने जो भी नापा है आपके डॉक्टर से डिस्कस करके, ये जो आपको शुगर नापने की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है, वो एक ही प्लान नहीं रहता है। आपके कैसे सर्कमस्टेंसेस है उसके ऊपर डिसीजन आता है। आपका शुगर जब भी ज्यादा कंट्रोल में होता है तभी आपको कम नापना पड़ता है, जब भी आपका शुगर कंट्रोल के बाहर चल जाता है तभी आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली नापना पड़ता है। दूसरी चीज, जब भी आप आपके शुगर की वैल्यू एंटर करें तो आपको खुद को भी जजमेंट लगाना है। जैसे आज आपका खाने के बाद का, दोपहर के खाने के बाद का शुगर 250 आया, कल 150 ही था और उसके अगले दिन 160 ही था, तो आज क्यों 250 आया। आपको भी सोचना चाहिए कि आपने क्या खाया है और आपको अपना एजम्पशन वहां लिखना चाहिए कि भाई ये मुझे लगता है मैंने ये किया, इसके कारण मेरा शुगर बढ़ा है। वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और वो जो चीजें हैं जिससे आपका शुगर बढ़ रहा है उसको आप कंट्रोल में करें। तो गोलियों का, अगर आप गोलियों पे हैं या खाली डाइट पे हैं तो खाली वो चेंज करने से भी आपका शुगर कंट्रोल में आ सकता है। तो आपको आपका डाइट, आप क्या ले रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सब भी साथ में अगर आप चार्ट बना के रखेंगे, और इंसुलिन ले रहे हैं तो कितना कितना कौन से टाइम पे ले रहे हैं वो भी अगर साथ में चार्ट बना के रखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा आइडिया आएगा कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, और आपके डॉक्टर को भी आपका ट्रीटमेंट का प्लान चेंज करने में
काफी सहायता मिलेगी। प्रताप जी, इसमें सब लिखते समय पूरी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार यंग बच्चे आते हैं, अब रीडिंग 150, 140, 150, 120, 140 लिखकर लेके आते हैं, डॉक्टर भी खुश और उसके बाद वो भी, उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि देखो मेरे बच्चे ने कितना अच्छा किया, और जब हम उसका एवरेज शुगर करते हैं HbA1c तो वो एकदम 9 और 10 आ जाता है। तो इस तरह से ईमानदारी रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें गलत नहीं जरूरी, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी बात। यस यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, और खास ये ध्यान रखिए आप जो भी कर रहे हैं वो आपके भले के लिए है। अगर आप गलत करेंगे तो वो आपको ही नुकसान करेगा, तो आप जितने ऑनेस्ट रहेंगे इन सब चीजों के बारे में, उतना आपको ज्यादा फायदा आपके डॉक्टर से मिल पाएगा। अगर आप गलत बोलेंगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी एक और चीज आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 डायबिटीज का भी ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है अभी इसमें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो डायबिटीज होता है उसमें कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती है हर चीज की, खाने की, दवाइयों की, इंसुलिन की। उसी तरीके से उसमें ये ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज नापने की भी अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं डॉक्टर गुप्ता जी से पूछूंगा कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दरमियान डायबिटीज पता चला, या कोई डायबिटीज ऑलरेडी है और अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो उनको किस तरीके से ग्लूकोमीटर से शुगर नापनी चाहिए? हाँ, तो अभी प्रताप जी हमारे पास समय बहुत कम है, हम बहुत ब्रीफ में मैं इसको बताना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपको खाली पेट की शुगर 90 के अंदर रखनी है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 120 के अंदर रखनी है। और जितना अच्छा आप शुगर कंट्रोल करेंगे, उतना अच्छा और उतना स्वस्थ बच्चा होने की संभावना रहेगी। अब हम 2 प्रकार के लोग आते हैं। ऐसे लोग, एक तो जिन लोगों को सिर्फ प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज हुआ और डिलीवरी के बाद खत्म हो गया, जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। यूजुअली ये 4, 5वें, 6वें महीने के बाद आता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोग, इसमें करीब 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ खाने में परहेज से ही उनका 90 और 120 कंट्रोल हो जाता है और उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनको या तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ के सिर्फ आहार पर ही कंट्रोल हो रहा है, ऐसे लोगों को जितना शुगर कंट्रोल करने के लिए खाली पेट करना पड़ता है, नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद, रात के खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि जो प्रेगनेंसी डायबिटीज है वो पोस्ट मील ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ाता है। यूजुअली प्री मील ब्लड शुगर नॉर्मल रहते हैं। तो ऐसे लोग जो सिर्फ डाइट पर हैं, रोज के 2 से 4 शुगर उन्होंने किया तो चलेगा, पर डेली करना पड़ता है डिलीवरी होने तक के। स्पेशली जिनका बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है तो फिर हमको बोलते हैं सिर्फ पोस्ट मील करो, फास्टिंग यूजुअली नॉर्मल रहता है। पर ऐसी महिलाएं जिनको की इंसुलिन चालू है, दिन में यूजुअली 3 से 4 बार इंसुलिन रह सकता है, तो यह जो ऐसी महिलाओं को डेली के कम से कम 4 से 6 बार शुगर करना जरूरी होता है। यदि आपको प्री जेस्टेशनल डायबिटीज है, या तो टाइप 1 कोई मधुमेही बच्ची है वो प्रेग्नेंट हो गई, या टाइप 2 मधुमेही महिला यदि प्रेग्नेंट हो गई, तो ऐसी कंडीशन में उनको रोज के कम से कम 6 से 8 बार शुगर करना जरूरी होता है। जितना ज्यादा आप ग्लूकोज शुगर टेस्ट करेंगे, उतना अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे और उतने स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगे। और जहां पर आपने थोड़ी भी कोताही बरती, और जैसा कि अभी बहुत सारी बैकग्राउंड बता दिया गया कि आपने क्या खाया आपको समझ में आता है, और ये जो एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसने चावल खाया उसका शुगर नहीं बढ़ा, दूसरे ने चावल खाया उसका शुगर बढ़ गया। एक व्यक्ति ने पोहा खाया उसका शुगर नहीं बढ़ा, दूसरे ने खाया बढ़ गया। तो ये आप जब टेस्ट बार बार करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको कौन सा पदार्थ खाने के बाद शुगर एकदम 140 150 पर जा रहा है, और उसको फिर आप नहीं खाते हैं, या उसको कंट्रोल करने के लिए एडिशनल इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से प्रेगनेंसी में खाली पेट, नाश्ते के पहले, नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के पहले, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद, रात के खाने के पहले, रात के खाने के 2 घंटे बाद, और रात को 3 बजे, इस तरह से हमने कम से कम 6 से 8 बार शुगर, यदि आपको मल्टीपल डोजेस इंसुलिन के चालू है तो करना चाहिए। जिनको इंसुलिन मल्टीपल डोजेस नहीं है, या जिनको कई बार से गोलियां चालू रहती है, ऐसी कंडीशन में उनकी फ्रीक्वेंसी 2 से 4 बार भी हो सकती है। स्पेशली पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच और पोस्ट डिनर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमने सेंट्रल इंडिया की स्टडी में देखा है कि डिनर के बाद का भी शुगर कई बार ज्यादा रहता है। और ये सब चीजें मॉनिटरिंग के समय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बड़ा छोटा सा पीरियड होता है, कभी कभी 6 महीने का, कभी 4 महीने का, कभी 3 महीने का, और जो इनको पहले से डायबिटीज उनको 9 महीने का। ये पीरियड आपके जीवन का सबसे क्रूशियल पीरियड होता है बच्चे के भविष्य के लिए।
भले ही बच्चा अच्छा भी हो जाए, परंतु यदि शुगर कंट्रोल नहीं है तो ऐसे बच्चों को आगे जाके डायबिटीज और मोटापा और हार्ट और ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम होते हैं। तो जितना अच्छा आप पानी देंगे, जितना अच्छा खाद देंगे, उतना अच्छा पौधा देगा और उतने अच्छे आगे जाके फल आएंगे। और इसीलिए सिर्फ बच्चा ही नहीं चाहिए, अच्छा भी यदि बच्चा चाहिए तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। और सौभाग्य से प्रेगनेंसी के समय महिलाएं बहुत अच्छा ध्यान रखती हैं। अब एक और प्रश्न प्रताप जी ने उसमें ऐड किया कि ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और अभी डायबिटीज ऑलरेडी है उनको, ऐसी लोगों को भी इस तरह से शुगर कंट्रोल करके फास्टिंग और पोस्ट मील को 90 और 120 करके कंट्रोल करके रखना पड़ता है। HbA1c की कोशिश करते हैं कि 6 के अंदर रखें प्रेग्नेंट होने के पहले, जिसको हम लोग प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बोलते हैं। तो प्री कंसेप्शन केयर और प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के समय मॉनिटरिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल रहती है तब हम चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी रखो, तब हम डॉक्टर आपको परमिशन देता है कि अब आपकी शुगर कंट्रोल है, अब आप प्रेगनेंसी के प्रयास शुरू करो और आप प्रेग्नेंट रखो। यदि आप अनकंट्रोल्ड स्टेट में प्रेगनेंसी रख लेते हैं तो फिर उसके प्रॉब्लम बच्चे पर हो सकते हैं, कई बार एबॉर्शन वगैरह भी हो सकता है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग प्रेगनेंसी के समय जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहता है। ओके ओके, थैंक यू गुप्ता जी ये डिटेल में बताने के लिए। अभी मैं सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा डॉक्टर राकेश राय जी से कि अगर शुगर की वैल्यू किसी ने नापा और कम आई, 70 के कम आई या बहुत ज्यादा आई, तो उनको क्या करना है? तो ये जानना है कि इमीडिएटली अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं और लो आती है वैल्यू, जैसे आपको 70 के नीचे आई और या 60 के नीचे आई, तो उसका मतलब ये है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, मतलब ये आपका शुगर लो हो रहा है और उसको आप इमीडिएटली करेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपको अक्सर ऐसे समय में ये होता है कि घबराहट, पसीने या पैल्पिटेशन यानी दिल धड़कना, ये सब हो सकता है। तो ये अगर नहीं भी हो, किसी को नहीं भी हो सकता है, क्योंकि किसी को ऐसे टाइम पे सिम्टम्स कभी नहीं भी आ सकते, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो ये सिम्टम्स नहीं भी आ सकते। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है। आपको 10 से 15 या 20 ग्राम ग्लूकोज लेना है, मतलब आप 1-2 चम्मच शुगर इधर वाटर में या नहीं तो दूध में मिलाकर आप पी सकते हैं। इमीडिएटली आपको 15 से 20 ग्राम शुगर लेना है, ग्लूकोज लेना है। ग्लूकोज कंटेनिंग फूड्स ले सकते हैं आप, ऐसे कोई जो भी इमीडिएटली अवेलेबल है उसको लेना है। और उसके बाद आप फिर कुछ देर बाद 15 मिनट बाद फिर चेक करिए और आपको पता चलेगा कि आपको जनरली सिम्टम्स भी आपके कम हो जाएंगे और रीडिंग भी आपको पता चलेगा कि वो 100 के ऊपर जाएगी। तो जब आप ये सोच सकते हैं कि उसको आप करेक्ट कर रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया को, देन अगर ये नहीं परसिस्ट होता है तो फिर आपको फिर इसके बाद फिर एक बार लेना चाहिए, फिर एक बार ये ग्लूकोज लेना चाहिए। तो ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अगर आपकी शुगर ज़्यादा आती है, 250 से 300 ज़्यादा आती है, तभी भी आपको ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। कभी किसी को घबराहट, चक्कर आना है, ये सब गिडीनेस वगैरह हो सकते हैं। तो इस समय में आपको ये करना है कि आपको आपके जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन वगैरह लेना है, प्लस आपको कीटोन्स के लिए भी चेक करना चाहिए, यूरिन में कीटोन्स के लिए भी चेक करना चाहिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जब आपकी शुगर ज़्यादा हो रही है, 350 से 400 से ज़्यादा हो रही है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम का कंडीशन भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको यूरिन में कीटोन्स भी चेक करना चाहिए। एंड आपके डॉक्टर से संपर्क करके आपको आपके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है उस समय में। सो आई थिंक जब भी शुगर कम होता है तभी रूल ऑफ 15 अप्लाई करना चाहिए। 15 ग्राम ग्लूकोज लेके 15 मिनट के बाद वापस टेस्ट कीजिए। और अगर आप गोलियां ले रहे हैं तो आपको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो जब भी आपका शुगर थोड़ा लेवल में आ जाए, आपको थोड़ा कुछ खाना ले लेना जरूरी है। आपके डॉक्टर से बात कर लीजिए और वो जिस तरीके से आपकी दवाइयों का डोज या इंसुलिन का डोज चेंज करना चाहिए। और जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है तभी आपको ज्यादा बार बार शुगर चेक करना पड़ता है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और उसके लिए आप अपने डॉक्टर से टच में रह के उस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के दवाइयों का और उसका डोज एडजस्ट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन अगर अमित जी परमिशन दे तो मैं लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहूंगा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो खास करके कोई बीमार हो तो उनको किस तरीके से शुगर चेक करना चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन। और फिर मैं अमित जी और पूर्वी जी को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ दिस नाइस इनिशिएटिव। मुझे लगता है काफी सारे लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस जो ये मॉनिटरिंग के लगते हैं
वो हम उसके क्वेश्चंस के आंसर देने में सफल रहे होंगे, आपको उनसे फायदा मिला होगा, ऐसे हमारा मानना है। और जो भी हो आपके सुझाव आप हमें यहाँ पे लिख के भेजते रहिए, तो हम और अच्छा बनाने की इसको ट्राई कर सकते हैं। राकेश जी, सुनील जी। हाँ प्रताप जी, ऐसा है कि कोविड के समय भी हमको जैसे सिक डे गाइडलाइन बताया कि हमको घर में है तो हमने मॉनिटरिंग जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और उसको अपने कई बार एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है तो प्रॉब्लम होता है, कई बार खाना ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम, तो आपके दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। पर उसके पहले कि हम कोविड पे ऑलरेडी हमने बात कर रही है, लो और हाई शुगर के बारे में हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। ऑलमोस्ट सेम नॉर्म्स जो राकेश जी ने बताया वो लो और हाई के उस कोविड के इसमें भी सूट होते हैं। इंपॉर्टेंटली कि हमने मॉनिटरिंग पे बात करी, शायद हम लोग आज सिर्फ सेल्फ मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, पर लोगों को बताना जरूरी है कि एक सीजीएम सिस्टम भी होता है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बोलते हैं। और यह जो सीजीएम है इसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं, कुछ रियल टाइम आते हैं, वो सेंसर यहाँ लगा दिया जाता है और उसमें हर 15 मिनट की शुगर 15 दिन तक मॉनिटर होती है। और यह भी सिस्टम है जो मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है अपार्ट फ्रॉम एसएमबीजी के अलावा। तो सीजीएम भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आते हैं, कुछ रियल टाइम आते हैं कि आपने लगाया और आप तुरंत देख सकते हैं कि इतना शुगर चल रहा है, और कुछ आते हैं जो जिसमें रिट्रोस्पेक्टिव पुरानी रीडिंग आती है पिछले 15 दिन की। तो सीजीएम भी आजकल, और उसमें एक टाइम इन रेंज जो मैं बात कर रहा था, टाइम इन रेंज कैलकुलेट होता है कि आपकी शुगर पिछले 7 दिन में या पिछले 4 दिन में या पिछले 15 दिन में कितने समय टाइम इन रेंज, उस रेंज में रही। आपने एक रेंज बना दिया कि 80 से 150, उस रेंज में रही। आपकी टाइम इन रेंज यदि 70% या 60% के ऊपर है तो आपका शुगर ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अभी नए खोज के अनुसार रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c के अलावा टाइम इन रेंज के ऊपर भी ज्यादा बात हो रही है, और उस पर भी रिकमेंडेशंस आ रहे हैं कि वो होना चाहिए। और प्रेगनेंसी में हम चाहते हैं कि 80% या 70% से ऊपर टाइम इन रेंज हमारा शुगर रहना चाहिए, जो रेंज में 80, 90 और 120 के बीच में। आई फील ये एक इम्पॉर्टेंट था, कोविड के समय हमको ध्यान देना जरूरी है। आई फील यदि राकेश को कुछ और बात करनी है तो राकेश जी बता सकते हैं। आई थिंक ये जरूरी है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो, आप मॉनिटर करिए, घर पे रहिए, मॉनिटर करिए, और जो भी दवाई आपको प्रिस्क्राइब की गई बराबर इससे लीजिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो शुगर कंट्रोल जिसका नहीं रहता उनको जो है कोविड की सीवियरिटी ज़्यादा रहने की संभावना ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि ध्यान देना है कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे और आप बराबर से मॉनिटर करते हैं। अभी आजकल घर में रहने से ना वो फास्ट फूड जो होटल का था वो सब कम हो गया राकेश जी। तो वाला एक वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा है कि आपको बाहर का फूड, स्पेशली मेट्रो सिटीज में लोग बाहर जाके बहुत, यूजुअली लंच नहीं हो गया ब्रंच होता था, तो वो चीज आजकल कम हो रही है और वो बड़ा पाव और वो सब ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो दैट्स एडवांटेज इन बिग सिटीज। आई थिंक यहाँ पे हम ये अपना प्रोग्राम मॉनिटरिंग के रिलेटेड खत्म करते हैं और अमित जी और पूर्वी जी को हैंड ओवर करते हैं। सर, मैं आज का प्रोग्राम सारा बहुत मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहा है, क्योंकि हमने बहुत बेसिक चीजों से लेकर के बहुत एडवांस तक भी जितना कवर कर सकते थे उतना कवर करने की कोशिश करी है, और हमारे तीनों पैनलिस्ट ने अपना बेस्ट, मैं कहूंगा कि एक तरीके से समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एंड दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी one of the most sought after episode in the diabetes bite। और सर, हर एपिसोड के बाद हमें ये लगता है कि डायबिटीज एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम जब भी कोई भी हमारी टीम, डॉक्टर पूर्वी, डॉक्टर शालिनी एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल ऑफ यू, जब भी हम कुछ प्लान करते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये टॉपिक छोटा पड़ जाएगा, इसमें क्या बात करेंगे, लेकिन हर बार हमारे साथ ऐसा होता है कि वी कीप ऑन टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। और अभी भी मुझे लगता है प्रताप जेठवानी सर के 50% क्वेश्चन जो है वो अभी अनआंसर्ड रह गए हैं। मे बी दोबारा हम कभी जब भी मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो वी विल बी एबल टू टेक दोज क्वेश्चंस एज वेल। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि RSSDI ना केवल डॉक्टर्स एजुकेशन में बट पेशेंट एजुकेशन में भी बहुत काम करती है। बहुत बार ये काम होता है जो आप लोगों की नजर तक नहीं पहुंच पाता, तो हम इस एपिसोड में ये प्रयास भी करते हैं कि हम आपको कुछ ऐसा वर्क जो हमारे RSSDI के मेंबर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो करते रहते हैं समय समय पर और एक निस्वार्थ सेवा के भाव से जो लोगों के लिए काम करते रहते हैं, इट इज रियली समथिंग जो एक अप्रिशिएबल है। मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इफ वी गो एंड सी दीज स्लाइड्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर प्रताप, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो कि डॉक्टर सुनील गुप्ता, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दीज स्लाइड्स सर?
I feel you hardly have 30 seconds. I don't think कोई बात नहीं है सर. We Hello just, Diabetes. move ahead But and I think Amit, Yes. hello. Yeah, we run this Hello Diabetes campaign और हम लोग इसको एक मुहिम करके चला रहे हैं पिछले 26 सालों से, and we call it as is mission for education. So we try to educate, empower people since 26 years. We are doing this program, almost more than 2,100 programs. So we usually do 1.6 program per week. So पूरे पिछले 26 सालों से डायबिटीज, हेलो डायबिटीज और हमारी टीम ने ऑलमोस्ट एक संडे और आधा सैटरडे सोसाइटी को देने की कोशिश करी है थ्रू दिस एजुकेशन प्रोग्राम. दिस इज डायबिटीज अवेयरनेस रैली. ये जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम, ये आकाशवाणी का लाइव this week it will be 2.5 programs because ये diabetes bites भी आपको count करना है. जी. So this is all education program. This we do it for every community. हमने सेंट्रल जेल का एक प्रोग्राम है, जेल के अंदर भी जाके एजुकेशन प्रोग्राम करने की कोशिश करी है वेरियस कम्युनिटी. ये कोविड आपने बताया, कोविड के सामने ऑनलाइन किया था. गांव का एक व्यक्ति, ठेठ व्यक्ति, वह भी कोशिश कर रहा है एजुकेट होने की. These are some of the important. This is the outstanding young person of the world award. ये काफी नोबल पुरस्कार जैसा माना जाता है इसको यंगस्टर्स के लिए जो लेस देन 40 years of age मिलते हैं. और ऐसे बहुत सारे रिकॉग्निशन है. जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे वो अमित जी करें, राकेश जी करें, या प्रताप जी करें, या पूर्वी जी करें, कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलता है. और इसलिए अपना काम करते रहिए. जरूरी नहीं है रिकॉग्निशन मिले, पर आप जितना अच्छा काम करेंगे, चाहे वो RSSDI बैनर में करें, चाहे अपने चेंबर में करें, आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको कहीं ना कहीं पीछे से ठप करेगी, पाठी देगी. और उसकी भले ही अपेक्षा ना करते हुए करते रहिए. It will certainly. This is just Guinness Book of World Record. The outstanding young person of the world जो अवार्ड है, इसके बारे में जस्ट बताऊंगा कि दिस इज ऑलमोस्ट 7 US के प्रेसिडेंट्स को मिल चुका है. और इसके अलावा अलग अलग बड़ी बड़ी हस्तियों को, जैकी चैन और माइकल जैक्सन, बहुत सारे लोगों को मिल चुका है जब वो लोग 40 साल से कम की उम्र में थे. तो वो एक प्रेस्टिजियस है. बाकी recognition society ke hain. I don't want to go and waste time of others. I feel we have now Rakesh and Pratap ji to share. So your story is really inspiring for all of us, So and we are it keeps us Yes, motivating. yes, definitely. And actually, it motivates a lot of young people around us. They keep watching you and they move ahead in life. Thank you, So sir. nice, so nice of Next you. slide. And we want, sir, that they should carry the torch further to the grassroots levels and take the message of diabetes education much Wait, further. sir. Pratap, sir, some of the slides we got from you also, and you have also been a torchbearer of diabetes at your place and all across India as well. A few words from you, sir, as well. So I have started my journey in RSSDI in 2007 with first ever annual meeting being planned at Rajkot with the help of Dr. Bansi Sabu, who is current president and is my mentor. तो उनके साथ मिलके तभी पहली कॉन्फ्रेंस की, और तब से आई थिंक सच ऐसे ग्रेट पीपल, डॉक्टर बंसी, डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर राजीव चावला, ये सब जो लोग हैं, दे आर सो मच इंस्पायरिंग कि इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि लगता है कि डायबिटीज के फील्ड में हमें भी कुछ करना चाहिए. और तब से मैंने डायबिटीज के फील्ड में जर्नी शुरू की है और अभी तक काफी सारे कैंप्स किए, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, डॉक्टर्स के लिए अपडेट्स ऑर्गेनाइज किए हैं. ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये सब एक्टिविटीज हम राजकोट में और गुजरात के डिफरेंट प्लेसेस पे करते आए हैं. और खास करके खाली डॉक्टर्स नहीं, बट पेशेंट्स को भी एजुकेशन मिले, उनको भी पता चले कि क्या, क्योंकि डायबिटीज में एजुकेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम इस माध्यम से अभी आप सब लोगों तक वो पहुंचाने की ट्राई कर रहे हैं. Thank you, Amit, for sharing slides. Rakesh, sir, Thank you, sir. this time we missed your slide, but we know that you have been doing a commendable work in the field of diabetes, and आप बहुत inspiring काम कर रहे हैं, sir. We are very, very thankful to you. And I will request Dr. Purvi Chawla to conclude this program by commenting. What more can I say than anything that Amit has already said? We are extremely thankful to all the 3 super experts who have joined us today, and I think they are leading the way. We are just following behind them. Wonderful information shared, और बहुत अच्छी तरह हिंदी में भी आपने वो पूरा एक्सप्लेन किया, तो हमारी ऑडियंस के लिए वो और भी ज़्यादा फायदेमंद है. So thank you very much once again, and we will continue to follow you. And audience, stay tuned for the next episode next week. We will keep up our promise and be there. Thank you so much. Thank you, Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you very much.